अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 श्लोक संख्या 10 चैप्टर 8 वर्स नंबर 10। हम 9 हमने पढ़ लिया था या बाकी है? कैसे 9 भी बाकी है? हरे कृष्णा। इसको हमने हिंदी में पढ़ा था कल। जी प्रभु जी। इसके डिस्कशन हुआ है इस पे या बाकी है डिस्कशन? बाकी है प्रभु जी। ओके, तो चैप्टर 8 वर्स नंबर 9 इस पे डिस्कशन हम करेंगे आज। तो एक बार हम फिर से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है ट्रांसलेशन तो प्लीज़ एक बार पढ़िए। One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything. अच्छा, मैं शायद प्रभु जी कौन सा वाला पढ़ना है? 10 पढ़ना है, 9 पढ़ना है? नहीं, 9th वाला ही पढ़ना है। कंटिन्यू करिए प्लीज। Who is inconceivable and who is always a person. He is luminous like the sun and being transcendental is beyond this material nature. Purport. The process of thinking of the Supreme is mentioned in this verse. The foremost point is that he is not impersonal or void. One cannot meditate on something impersonal or void. That is very difficult. The process of thinking of Krishna, however, is very easy and is factually stated herein. First of all, he is Purusha, spiritual Rama and Krishna, and is described herein as Kavim. That is, he knows past, present, and future, and therefore knows everything. He is the oldest personality because he is the origin of everything. Everything is born out of him. He is also the supreme controller of the universe, maintainer and instructor of humanity. He is smaller than the smallest. The living entity is 1/10,000th part of the tip of a hair, but the Lord is so inconceivably small that he enters into the heart of
this particle. Therefore, he is called smaller than the smallest. As the supreme, he can enter into the atom and into the heart of the smallest and control him as the super soul. Although so small, he is still all pervading and is maintaining everything. By him, all these planetary systems are sustained. We often wonder how these big planets are floating in the air. It, it is stated here that the Supreme Lord, by his unconceivable energy, is sustaining all these big planets and systems of galaxies. The word Achintya is very significant in this connection. God's energy is beyond our concept. Beyond our thinking, jurisdiction, and is therefore called inconceivable. Who can argue this point? He pervades this material world and yet is beyond it. We cannot even compare this material world, which is insignificant compared to the spiritual world. So, how can we compare what is beyond? Achintya means that which is beyond this material world, that which our argument, logic, and philosophical speculation cannot touch, that which is inconceivable. Therefore, intelligent persons avoiding unless argument and speculation should accept what is stated in scriptures like the Vedas, Gita, and Srimad Bhagavatam and follow the principles they set down. This will lead on the understanding. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shila Madam, Prabhupada. हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। धन्यवाद। यहाँ पे इस श्लोक पे हम डिस्कशन करेंगे 8.9 पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भगवान को हम किस तरह याद करें। अब कई बार हम भगवान के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, भगवान बड़े हैं, भगवान महान हैं, गॉड इज़ ग्रेट। तो श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं कि एवरीबडी नोज़ दैट गॉड इज़ ग्रेट। सब लोग जानते हैं कि भगवान महान है, पर किस तरह महान है, कैसे महान है, कितने महान है, कैसे कार्य करते हैं, कब वो आते हैं, कब वो जाते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनको कैसे याद करना चाहिए और कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए, भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत सारी डिटेल्स है। तो ये सारी डिटेल्स जब तक हमको पता नहीं है तब तक हम भगवान को पूरी तरह सरेंडर नहीं कर सकते, और जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम सेवा नहीं कर सकते। अगर हम अपने इमेजिनेशन के अनुसार अपने मनमाने ढंग से अगर भगवान के बारे में सोचते हैं और उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाता, और फिर हमारा कुछ करने का कोई लाभ नहीं होता, और फिर कभी कभी हम नास्तिक भी बन जाते हैं। क्योंकि पहली बात तो हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि भगवान क्या है, भगवान कौन है, कैसे उनकी सेवा करनी है, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या उन्हें अच्छा नहीं लगता है, कौन सी मेरी सेवा स्वीकार की जाएगी और किस तरह स्वीकार की जाएगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की क्या जॉब है या फिर प्राइवेट कंपनी क्या करती है, और उसमें कौन से जॉब की रिक्वायरमेंट है, और उस जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सीखना पड़ता है, उसकी परीक्षा होती है, उसके इंटरव्यू होते हैं। तो सब कुछ आपको डिटेल में जानना पड़ता है, और फिर आपको उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और फिर आप जब परीक्षा में बैठेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, वो लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, फिर आपकी सर्विस स्टार्ट होगी वहाँ पे। और उसके बाद भी अगर आपने ठीक से वहाँ पे सेवा नहीं की, सर्विस नहीं की, तो हो सकता है आपको जॉब से निकाल भी दिया जाए। तो जब इस भौतिक संसार में ही ऐसा होता है तो फिर आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा, जो भगवान पूरी दुनिया को चला रहे हैं, इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड को जिन्होंने बनवाया है और जो उसका संचालन करते हैं अपने इशारों पे, इतने बड़े भगवान जो है उनकी सेवा डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं बिना कुछ जाने।
बिना गीता पढ़े, बिना भागवत पढ़े, बिना गुरु की शरण में गए, बिना समर्पण किए और बिना ज्ञान प्राप्त किए हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? तो ये इम्पॉसिबल है। और इसीलिए इस पूरे संसार का जो आध्यात्मिक वातावरण है, श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं अपने लेक्चर में कि आजकल जो ढोंगी साधु और ढोंगी नेता जो है, जो मनमाने ढंग से सब कुछ करते हैं, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, गीता को फॉलो नहीं करते हैं, मनमाने ढंग से कुछ अपना सिद्धांत बना देते हैं और जनता उसको फॉलो भी करती है, उसकी वजह से इस पूरे धरती पे जो आध्यात्मिक वातावरण है वो नष्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और सभी लोग अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं, अपने अपने तरीके से कुछ बातें बताते हैं कि ये सत्य है, कोई कहता है ये सत्य है, कोई कहता है ये सत्य है। इस तरह से अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग पंथ बने हुए हैं और किसी का एक उद्देश्य नहीं है, और सबके अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग पर्पज़ है हर एक ग्रुप के, और सब अपने मनमाने ढंग से कुछ फिलॉसफी को मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। इसी की वजह से इस धरती पे मनुष्यों के अंदर एकता नहीं है और सभी अपने अपने ग्रुप को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप को काटने का ट्राई कर रहे हैं और गलत बातों का प्रचार करते हैं, खुद भी गलत बोलते हैं और दूसरों को भी गलत साबित करने का ट्राई करते हैं। और इसी की वजह से जो है इस पूरी धरती पे जो आध्यात्मिक वातावरण है वो नष्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और इसलिए हम देखते हैं कि इतना भगवान की लोग बातें करते हैं, इतने सारी धर्म की बातें होती है, फिर भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग सही गुरु को और सही शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने इसीलिए एक संत को भेजा है, एक साधु को भेजा है, एक गुरु को भेजा है, जिनका नाम है श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने भगवत गीता यथारूप में प्रस्तुत की है। और यथारूप में जब हम पढ़ते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है और कोई शक नहीं रहता और सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और हमको बस एक को फॉलो करना है, एक शास्त्र, एक भगवान, एक गुरु। पूरी धरती पे जितने मनुष्य हैं सबको एक को ही फॉलो करना है। तो फिर इस धरती पे जितने भी मनुष्य रहते हैं सब में एकता होगी और सबको शांति मिलेगी। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहले तो सही चीज़ को जानना है और फिर सही चीज़ को फॉलो करना है और सभी को करना है। तो सभी को करेंगे वो तो अभी इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट हमको समझना है कि सही क्या है। और अभी हमें समझना है कि सही भगवान कृष्ण है, भगवत गीता है। उन्होंने जो गीता में जो उपदेश दिए हैं, जो श्लोक बताए हैं, वो परफेक्ट। और भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने वाले जो परफेक्ट गुरु हैं वो है श्रीला प्रभुपाद। तो एक भगवान, एक गुरु, एक ही होता है, एक ही चंद्रमा होता है और एक ही सूरज होता है। तो सूरज मतलब भगवान, चंद्रमा मतलब गुरु। तो सूरज की रोशनी चंद्रमा पे गिरती है और चंद्रमा की रोशनी धरती पे आती है। तो सूरज से शुरू होकर चंद्रमा तक जाती है, चंद्रमा से धरती पे आती है। मतलब भगवान से ज्ञान शुरू होता है गीता का, फिर वो प्रभुपाद जी तक जाता है, प्रभुपाद जी चंद्रमा की तरह है, और फिर प्रभुपाद से हमारे पास आता है, हम धरती पर रहते हैं। तो इस तरह से ये वही ज्ञान जो भगवान ने दिया है वो चंद्रमा के माध्यम से हमारे पास आता है, प्रभुपाद जी के माध्यम से हमारे पास आता है। अब कोई कहेगा कि हम डायरेक्टली सूरज से ले लें, पर डायरेक्टली सूरज से लोगे तो जल जाओगे क्योंकि उसकी रोशनी तो बहुत तेज़ है, उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए चंद्रमा है कि वही रोशनी चंद्रमा पे गिर के ठंडी हो जाती है और फिर वो जो रोशनी हम ले सकते हैं, जिसको हम आनंद ले सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं, वो हम चंद्रमा से लेंगे। तो रोशनी वो आती सूरज से ही है, बट वो थोड़ी ठंडी हो जाती। तो इसीलिए लोगों को धूप में बैठना अच्छा नहीं लगता, बट चंद्रमा के नीचे बैठना अच्छा लगता है, चंद्रमा की रोशनी के अंदर बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि वो ठंडक देती है और रोशनी भी देती है और ठंडक भी देती है। बट सूरज की रोशनी बहुत गर्म है, तो डायरेक्टली लेने की कोशिश करेंगे तो हम जल जाएंगे। तो इसलिए सूरज ने ही चंद्रमा को भेजा है, कृष्ण ने ही प्रभुपाद को भेजा है कि डायरेक्ट कृष्ण की हम रोशनी नहीं ले सकते, बहुत गर्म है और हम जल जाएंगे। इसीलिए हमको एक चंद्रमा दिया है
भगवान ने कि ठीक है तुम प्रभुपाद जी के पास जाओ। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, ही इज़ लुमिनस लाइक द सन, मतलब भगवान कृष्णा एक सूरज की तरह है और गुरु जो है वो चंद्रमा की तरह है। तो सूरज और चंद्रमा दोनों ही रोशनी देते हैं, बट चंद्रमा की रोशनी थोड़ी ठंडी होती है, तो हमारे लिए वो अच्छा है। इसलिए भगवान ने प्रभुपाद जी को हमारे बीच में भेजा है कि तुम जाओ मनुष्य समाज में जाओ, उनको ज्ञान दो, उनको ज्ञान दे के उनको भक्ति कराओ, उनको हरे कृष्णा जप कराओ, तो उनको वही ज्ञान जो मैंने गीता में दिया है वही सबको मिलेगा, और ऐसे मिलेगा कि सब समझ भी पाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि भगवान कृष्ण के जो श्लोक है गीता में डायरेक्टली समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो सूरज की रोशनी की तरह है, बहुत गर्म है और बहुत ही तेज है उसके अंदर, तो हम जल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या पढ़ा हमने, इसका मतलब क्या है। तो समझ में नहीं आया तो फिर हम उसको फॉलो भी नहीं कर सकते अच्छे से। इसीलिए फिर भगवान ने प्रभुपाद को भेजा कि ठीक है तुम इसी पे तात्पर्य लिखो, और तात्पर्य लिख के उनको सरल भाषा में उदाहरण दे के समझाओ, तो फिर सारी जनता को, सारे मनुष्यों को समझ में भी आएगा, फिर वो हरे कृष्णा भी बोलेंगे और भक्ति भी करेंगे। जब कोई उनके बीच में रहेगा और उनके साथ बात करेगा और उनके प्रश्नों का उत्तर देगा, तो उनको अच्छा लगेगा, उनको शांति मिलेगी। तो प्रभुपाद जी वो चंद्रमा है जिनको भगवान ने यहाँ भेजा है, और इसीलिए यहाँ पे परपट में हम जो कुछ पढ़ते हैं तो ये पढ़ के सब कुछ क्लियर हो जाता है कि भगवान जो है वो निराकार नहीं है, भगवान का रूप है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप कृष्ण का रूप है, और भगवान का नाम है बहुत सुंदर, राम और कृष्णा। और इसको समझना और इसको करना भी आसान है। तो आपको बस भगवान की फ़ोटो रखनी है, भगवान का विग्रह रखना है, महामंत्र का जाप करना है तुलसी माला पे, और ये बहुत इजी है, बच्चा भी कर सकता है। तो बड़े से लेके बच्चे तक सभी लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें देश का, धर्म का, जाति का कोई भेदभाव नहीं है, भाषा का भी भेदभाव नहीं है। जैसे हमारे देश में अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएँ हैं, अलग अलग पंथ बने हुए हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सभी के लिए है। तो चाहे आप साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है, पंजाबी है, गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, कोई भी है, आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं, क्योंकि हरे कृष्णा तो हर भाषा में एक ही होता है। गुजराती भी हरे कृष्णा बोले तो उसका भी मतलब वही होता है, और कोई और पंजाबी या साउथ इंडियन भी हरे कृष्णा बोले तो उसका मतलब भी वही होता है। हरे कृष्णा मतलब कि हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कृष्णा की सेवा में लगा दीजिए। तो चाहे कोई भी व्यक्ति इस हरे कृष्णा को बोले तो वो एक आध्यात्मिक शब्द है, एक आध्यात्मिक ध्वनि है, तो कोई भी उसको बोलेगा तो भगवान उसको सुन लेंगे और राधा रानी उनको सुन लेगी, और फिर उनको कृपा करके उनको सेवा में लगा देंगे। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी ने सब जगह पे प्रचार किया हरे कृष्णा का, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी अलग धर्म या किसी अलग देश में जाके या किसी अलग भाषा में इसका मतलब बदल जाता है। सभी देश के, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग हरे कृष्णा बोल के सीधा कृष्णा से जुड़ सकते हैं, और यही चमत्कार प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। पूरे धरती पे जितने देश है, जितने शहर है, हर शहर में जाके, हर देश में जाके प्रभुपाद ने इस हरे कृष्णा को समझाया और उसको बांटा लोगों को, और फिर वो इतना सरल तरीके से अच्छे से समझाया प्रभुपाद ने कि सभी लोग उसको समझने भी लगे और उसको फॉलो भी करने लगे। वरना तो ये अचिंत्य है, मतलब ये हमारी चिंतन शक्ति से परे है कि कैसे भगवान ये पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं। इतने बड़े बड़े लोक है, आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, इतने सूर्य हैं, इतने सारे ग्रह हैं, और कैसे भगवान उसको चलाते हैं। ये अचिंत्य है, ये मनुष्य के लिए समझना संभव नहीं है। पर जब भगवान के लोक में से, गोलोक में से कोई नीचे आता है, उन्हीं का कोई पार्षद, उन्हीं का कोई भक्त, भगवान उसको यहाँ भेजते हैं समझाने के लिए, तो फिर वो हमारी भाषा में आसानी से हमको समझाता है, और फिर हम समझ भी पाते हैं और हम उसको फॉलो भी कर पाते हैं। तो हमें बस इसको पढ़ना है, और फिर जो अचिंत्य है वो हमारे चिंतन में भी आ सकता है। जो अचिंत्य है, जो हमारी समझ के परे है, वो हमारे समझ में भी आ सकता है।
बस इसमें एक चीज़ रिक्वायर्ड है जो प्रभुपाद ने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट, अवॉइडिंग यूजलेस आर्ग्यूमेंट एंड स्पेकुलेशन। मतलब तर्क वितर्क और बेकार के प्रश्न, इसको हमें नहीं करना है। अगर मन में सचमुच डाउट है, अगर सचमुच आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। बट तर्क नहीं करना है। तर्क मतलब कि इसको झूठ साबित करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ये सत्य है। सत्य को आप झूठ साबित करने का कोशिश करोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे, आपकी हार होगी हमेशा। और सत्य को बस आप मान लोगे कि हाँ ये सत्य है, तो फिर आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि हम सत्य को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब गीता में सरल बोला है कि एक भगवान है और एक गुरु हैं, उनको फॉलो करना है, हरे कृष्णा बोलना है, समर्पण करना है। बट ऐसे कई लोग हैं आज के समय में जो कहते हैं कि नहीं, एक भगवान क्यों, हम तो इतने सारे देवताओं की पूजा करेंगे, हम तो इतने सारे मनुष्यों की पूजा करेंगे, हम तो इतने सारे मनुष्यों के बारे में लिखेंगे बोलेंगे, हम तो देवताओं के बारे में भी लिखेंगे बोलेंगे। और बाद में अगर समय बच गया थोड़ा सा तो फिर भगवान के बारे में भी सोचेंगे, पर एक्चुअली वो करते ही नहीं हैं। वो बस इसी में खोए रहते हैं, किसी पॉलिटिशियन या किसी मनुष्य, कोई एक्टर या कोई बड़ा अमीर आदमी, उसके बारे में बोलते रहते हैं, या फिर देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। बट जो मेन पॉइंट है कि भगवान के बारे में बोलना है और भगवान के बारे में ही बोलना है, उनके अलावा कहीं पे मन भटकाना नहीं है। उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं का प्रचार करना है। यही भगवत गीता का मूल संदेश और सारे धर्मों का यही मूल संदेश कि एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, एक ही हम सबका पालक है। उसी का नाम लेना है, उसी की भक्ति करनी है, उसी को प्रणाम करना है, उसी के सामने झुकना है। तो इससे मानव समाज में एकता आएगी। बट ऐसी कुछ ताकतें हैं आज के समय में जो ऐसा नहीं चाहती कि हम एक हो जाए, वो हमें बांटना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी शक्ति जो है वो हमको बांटने से बढ़ती है। वो चाहते हैं कि हम धर्म के आधार पे, देश के आधार पे, भाषा के आधार पे, या हमारे जो हम काम करते हैं उसके आधार पे हमको बांट दिया जाए। तो एक्चुअली जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारा काम है, ये हमारी पहचान नहीं है। बट आज के समय में ये हमारी पहचान बना दी गई है कि ये तो ब्राह्मण है, ये तो शूद्र है, ये तो क्षत्रिय है। ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारा काम है। और काम से किसी को पहचानना नहीं है, उसकी पहचान एक ही है कि वो भगवान का अंश है, भगवान का दास। तो पहले हमारे समाज में यही चलता था, भगवान का दास के नाम से सबका नाम रखते थे कि ये भगवान दास है, ये महेश दास है, ये कृष्ण दास है, ये राम दास है। तो ये ऐसे नाम होते थे सबके। तो उसमें जाति का पहचान पता ही नहीं चलता था कि इसकी जाति क्या है, क्योंकि सबके नाम के आगे दास लगता था कि ये सेवक है, ये भगवान का सेवक है। और भगवान के इतने सारे नाम हैं, तो किसी भी एक नाम के साथ दास लगा दो तो मतलब कि ये भगवान का दास। तो फिर जातिवाद होता ही नहीं था पहले हमारे देश में, ये जातिवाद बाद में शुरू हुआ है और भगवान ही सबका पालन कर रहे हैं। तो इसमें ये स्पष्ट लिखा है गीता में, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ही भगवान है, वही सबका पालन कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन, कि एक ही भगवान है, वो हम सबका पालन करते हैं। तो ऐसी जो शक्तियां हैं आज के समय में जो हमें बांटना चाहती है धर्म के नाम पे, अब कुछ शक्तियां हैं जो चाहती है हम मुस्लिम से नफरत करें, और कुछ शक्तियां ऐसी है जो हम चाहते हैं कि वो हिंदू से नफरत करें। तो जो चाहते हैं कि हम मुस्लिम से नफरत करें वो मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, जो चाहते हैं कि हम हिंदू से नफरत करें वो हिंदू के खिलाफ कुछ बोलते हैं। तो ये लोग बस यही चाहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ऐसे अलग अलग दलों में हम बटे रहें, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे अलग अलग जातियों में हम बटे रहें, या फिर भारतीय, अमेरिकी, चाइनीज़, जापानीज़, पाकिस्तानी, इस तरह से अलग अलग देशों में हम बटे रहें और आपस में लड़ाई करते रहें। और जैसे ही हम एक होने लगते हैं तो वो तुरंत ऐसी कुछ बात बोल देते हैं या ऐसी कोई घटना करवा देते हैं कि हमें फिर से एक दूसरे से नफरत हम करने लगते हैं। तो एक्चुअली जातिवाद और ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले ही ये लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं। ये लोग हमको बांटना चाहते हैं धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से, देश के नाम से, अलग अलग नाम से वो हमें बांटना चाहते हैं, हमको आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं।
और फिर जब हम लड़ाई करते हैं तो फिर वो बीच में आके बोलते हैं कि नहीं नहीं लड़ो मत, देखो हम आप दोनों के लिए कुछ करेंगे, तो हमको वोट दो और हमको ऊपर गद्दी पे बिठा के रखो। तो हम फिर भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली लड़ाई इन्होंने ही लगवाई हमारे बीच में, और अब इसको सुलझाने भी खुद ही आ रहे हैं और हमसे वोट मांग रहे हैं। तो ये एक तरह का गेम होता है, एक तरह का खेल होता है। इसको बोलते हैं विभाजन करके राज्य करना, मतलब डिवाइड एंड रूल। तो ये जो खेल है ये पहले अंग्रेज़ खेलते थे, और अभी जो हमारे ऊपर बैठे हैं ये अभी वही अंग्रेज़ों वाला खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि वो उन्हीं से सीखे हैं कि विभाजन करके कैसे हमें लड़ाई करवाई जाए और फिर लड़ाई को रोकने के नाम से हमको से वोट लिया जाए और फिर वापस से लड़ाई करवाई जाए। तो इस तरह से जैसे ही लोगों में एकता आने लगती है, अब कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि गीता और भगवान कृष्ण का नाम लोगों को पता चले और सब लोग भक्ति करने लगे भगवान की। अगर सारे ही मनुष्य धरती पे भगवान का नाम लेने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे तो सब एक हो जाएंगे, सब में एकता हो जाएगी। तो ये जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो सत्ता की गेम खेल रहे हैं, इनका तो खेल ही ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि सारी जनता एक हो जाएगी, भगवान को मानने लगेगी, गीता पढ़ने लगेगी। तो इसलिए जानबूझ के वो लोग हमारे बीच में लड़ाई लगवाते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें एक्चुअली हिंदू मुस्लिम, देखो वो मुस्लिम लोग ऐसा कर रहे हैं तो तुम्हें उनसे नफ़रत करनी चाहिए, उनको काटना चाहिए। फिर मुस्लिम लोग भी बोलते हैं देखो हिंदू लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें हिंदुओं से नफ़रत करनी चाहिए, उनको काटना चाहिए। इस तरह से वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं और एकता आती नहीं है कभी। और जैसे ही कोई एकता की बात करता है, भगवान की गीता की बात करता है, तो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं सिर्फ कृष्णा नहीं, देवी देवताओं की भी पूजा करो और देवी देवताओं का भी नाम लेना चाहिए। तो फिर वो धर्म के नाम से बांट देते हैं और एकता कभी आने ही नहीं देते हमारे बीच में। वो लोग मतलब इतने गिरे हुए लोग हैं कि किसी भी तरह से हमारे बीच में वो एकता आने ही नहीं देते। हमारे जैसे ही एकता बढ़ने लगती है हमारे बीच में, जैसे ही भगवान का नाम सब गाने लगते हैं और एकता बढ़ने लगती है, तो बीच में आके वो कुछ झगड़ा लगा देते हैं और लड़ाई लगा देते हैं। और फिर लड़ाई रोकने के नाम पे जैसे ये लोग आर्मी इसमें भी ऐसा करते हैं कि जैसे ही लोगों के मन में एकता आने लगती है और लोग सोचने लगते हैं कि हमें मनुष्यों के लिए कुछ करना चाहिए, तो तुरंत वो कुछ ऐसी घटना करवा देते हैं कि देखो चाइना ने ऐसा कर दिया, देखो पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, हमें उनसे नफ़रत करनी चाहिए, हमें उनको मार डालना चाहिए। तो फिर जनता बोलती है हाँ देखो ये गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, हमें इनको मार देना चाहिए। तो फिर कहते हैं ठीक है हम आपके लीडर बन के हम मार देंगे उनको, आपके बिहाफ पे, आपकी प्रतिनिधि बन के हम उनको मार देंगे। तो लड़ाई भी यही लोग लगवाते हैं और फिर उसको शांत भी वही लोग करते हैं, और फिर हम लोग ऐसे ही पागल बनते रहते हैं। या तो हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ाई कराएंगे, या तो चाइना पाकिस्तान बोल के लड़ाई करवाएंगे, या तो भाषाओं के कि हिंदी भाषा सबसे बड़ी भाषा है, हिंदी होनी चाहिए चारों तरफ, बाकी भाषाएं का कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से या तो भाषा के नाम पे लड़ाई कराएंगे, या तो देश के नाम पे, या तो धर्म के नाम पे, या जाति के नाम पे। देखो कहते ब्राह्मणों ने ऐसा किया तुम्हारे साथ और तुम्हें तो कुछ बदला लेना चाहिए, तुम्हें ब्राह्मणों के खिलाफ़ कुछ करना चाहिए। तो फिर वो जो दलित या जो शूद्र होते हैं वो उनको भी गुस्सा आ जाता है, हाँ हमारे पूर्वजों के साथ ब्राह्मणों ने ऐसा किया तो अब हम उनके साथ ऐसा करेंगे, हम बदला लेंगे उनसे। तो ये जो ऊपर बैठे हैं लोग, ये बड़े ही राक्षस टाइप के लोग हैं, ये हमें कभी भी एक नहीं होने देंगे, ये हमें हमेशा बांट के रखेंगे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बता रहे हैं वो हम सबको एक करने के लिए, कि एक भगवान है सूर्य की तरह, जैसे एक सूरज है वो सबको रोशनी देता है, एक चंद्रमा है जो सबको रोशनी देता है, तो भगवान एक ही है। और प्रभुपाद जी असली गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही भगवान है, तुम अपने आप को बांटो मत अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, क्योंकि सबकी ज़रूरतें तो एक जैसी है। सबको खाना पीना चाहिए, सबको कपड़े चाहिए, सबको रहने की जगह चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमको असली मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम सब को एक होना चाहिए, हम सबको एक भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवत गीता में सारे प्रश्नों का आंसर दिया है, सबने गीता पढ़नी चाहिए, सबने हरे कृष्णा बोलना चाहिए और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी भी बात को लेकर। तो ये असली गुरु का काम है और प्रभुपाद जी असली गुरु का काम कर रहे हैं। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से बच के रहना है जो हमसे लड़ाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे लोग
आते रहते हैं बार बार। वो जानबूझ के हमारी एकता को तोड़ने का ट्राई करते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि एक ही भगवान है और हमें बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान का मतलब कि जैसे मान लो आपके घर में आपके माता पिता है, आप 4 भाई रहते हैं। अगर कोई बाहर से आ जाए और आपसे कहे कि आपके माता पिता तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, और तेरा भाई तो ऐसा कर रहा है, तेरा दूसरा भाई तो ऐसा कर रहा है, तो फिर वो आपको माता पिता के खिलाफ भी कर रहे हैं और आपको एक दूसरे के खिलाफ भी कर रहे हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। अभी 4 भाई है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भाई है, और माता पिता राधा कृष्णा है। तो पहली बात तो कहते नहीं नहीं, राधा कृष्णा की पूजा मत करो, देवी देवताओं की पूजा करो, वो बेटर है। तो पहले तो आपको माता पिता से ही वो खिलाफ कर देते हैं, और फिर भी अगर आप नहीं हुए तो कहते हैं कि देख तेरा भाई क्या कर रहा है। मतलब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख ये भी भाई की तरह है, और सबके माता पिता एक ही है, राधा कृष्ण। तो वो या तो माता पिता के खिलाफ करने का ट्राई करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि देख तेरा भाई मुस्लिम देख क्या कर रहा है, या फिर मुस्लिम को जाके बोलेंगे देख तेरा हिंदू भाई क्या कर रहा है। तो इस तरह से वो, या फिर कोई जाके बोलता है देख वो ब्राह्मण क्या कर रहा है, तेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, या फिर ब्राह्मण को जाके बोलेंगे देख ये शूद्र तेरे खिलाफ कुछ कर रहा है। इस तरह से वो भाइयों में भी लड़ाई लगाते हैं और बच्चों में और माँ बाप में भी लड़ाई लगाते हैं। तो ये बहुत ही घिरे हुए और बहुत ही पापी किस्म के लोग हैं, इनसे दूर रहना है। कोई भी अगर हमें बांटने का ट्राई करता है, या तो देवी देवता बोल के, या फिर हिंदू मुस्लिम बोल के, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बोल के, किसी भी तरह, या फिर भाषाओं का नाम लेके, भाषा के आधार पे, या शरीर के रंग के आधार पे कि ये तो गोरा है, ये तो काला है, देखो ये इस्कॉन वाले गोरों लोगों को लेकर आते हैं इंडिया में, ये लोग इंडिया का पैसा बाहर ले जाते हैं। तो ये सब बहुत घिरे हुए किस्म के लोग हैं। ये किसी न किसी तरह से हमको बांटना चाहते हैं, या तो शरीर के रंग पे, या तो भाषा पे, या तो धर्म के नाम पे, या तो जाति के नाम पे, या तो देवी देवताओं के नाम पे, किसी भी नाम पे हमको बांटना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप कृष्ण का नाम लोगे तो देवी देवता भी खुश होते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को शक्ति भगवान से ही मिलती है, विष्णु से, कृष्ण से ही मिलती है। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो देवी देवता खुश होते हैं, और अगर वो खुश नहीं होते हैं तो भगवान उनको ठीक करते हैं। ये हमने बहुत सारे उदाहरण से देखा है कि इंद्रदेव को गुस्सा आया था, तो उन्होंने वृंदावन वासियों पे बारिश की थी, तो भगवान ने पहाड़ उठा लिया था। और ब्रह्मा जी ने भी भगवान के ग्वालों को छुपा दिया था, तो भगवान ने उनको भी पाठ पढ़ाया था, ब्रह्मा जी को। तो ये जो देवी देवता हैं वो अगर हमारे खिलाफ भी होंगे तो भगवान उनको ठीक कर देंगे। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, भगवान हमारे साथ है, और हमें सबको एक होना है, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। और ये जो घिरे हुए घटिया किस्म के लोग हैं जो हमें बांटना चाहते हैं, इससे हमें दूर रहना है हमेशा। तो फिर हमें कोई बांट नहीं पाएगा, हमें कोई हरा नहीं पाएगा, और फिर हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, जो कि जीवन का उद्देश्य है। तो ये सारे वेदों का, गीता का, भागवत का यही संदेश है कि हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम एवं केवलम। हरि का नाम लेना है और हम सबको एक बनना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य पूरा होता है। अगर किसी को कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरी बात हो रही थी किसी मुस्लिम से, तो उन्होंने भी ऐसे तालीम लिया है, तो वो भी सेम चीजें बता रहे थे। जैसे भगवान एक है, ये दुनिया हमारे लिए परीक्षा का टाइम है। वो भी बोल रहा है कि उनके वो में भी बोला गया है कि ये दुनिया जो ये 2.5 सेकंड का है, यहाँ पर हम 2.5 सेकंड जीते हैं, और भगवान की जो दुनिया है वहां पर टाइम का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे बहुत सी चीजें बोले कि भगवान ने खुद टाइम का कसम लेके ये बोला, और बहुत सारी बातें सेम है। पर वो लोग भगवान के पर्सनल फॉर्म में विश्वास नहीं करते, तो वो भी क्या इम्पर्सनलिस्ट है? मतलब जैसे गीता में बोला गया कि वो लोग भी क्या बहुत जन्मों के बाद भगवान के पर्सनल फॉर्म में विश्वास करेंगे? हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु को भी पूछा था उस समय जब चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा का प्रीचिंग स्टार्ट किया था, और महाप्रभु ने खुद चांद काजी के खिलाफ एक आंदोलन किया था, जो बंगाल में उस समय गवर्नर थे, और उन्होंने हरे कृष्णा को रोकने का प्रयास किया था। वो मुस्लिम थे,
फिर चांद काजी को उन्होंने शास्त्र के आधार पे हरा दिया था और ये स्थापित कर दिया था कि भगवान का रूप है, नाम है और गाय को मारना अपराध है। और उन्होंने उस समय चांद काजी को भी अपना शिष्य बना दिया था, वो मुस्लिम थे। और फिर चांद काजी ने बोला था कि मेरे मेरे जो परंपरा में आगे आएंगे, मेरे वंश आएंगे, उनको पठान बोलते हैं, तो वो उन्होंने कहा था कि मेरे जितने वंश है वो सब हरे कृष्णा बोलेंगे और कोई गाय को नहीं काटेगा। तो ये आज भी बंगाल में इसको फॉलो करते हैं। जो चांद काजी के जो पठान, जो उनके जो परिवार उसी उसी परंपरा में जो आते हैं, वो आज भी फॉलो करते हैं, वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं और वो गाय को नहीं मारते हैं और गौ हत्या नहीं करते हैं। और उसमें से बहुत सारे वैष्णव भी है। तो एक्चुअली उनको इम्पर्सनल हम बोल सकते हैं, बट वो उनका एक तरह का क्या कहते हैं, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है तो माया उनके ज्ञान को हर लेती है। बट जब वो किसी वैष्णव के, शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आते हैं तो वो भी मानने लगते हैं। अब जैसे हाल ही में मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप में कि जिसमें एक मुस्लिम ने गीता पे बोला है और वो मानते हैं कि उसमें जो कुछ लिखा है सब सही है। तो एक्चुअली उनसे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनको समझाना है कि देखो भगवान का नाम है, रूप है और जानवरों को मारना अपराध है, उनमें भी आत्मा होती है। तो तुम गाय को मत काटो और तुम नाम लो, हरे कृष्णा बोलो और भगवान के रूप को मानो। क्योंकि जो मोर पंख होता है तो वो लोग भी मानते हैं कि मोर पंख काफ़ी पवित्र होता है, मोर को वो पवित्र पक्षी मानते हैं। तो हमें बस उनसे अच्छे से बात करनी है, उनको समझाना है। और फिर हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कानून बनाना चाहिए कि किसी भी जानवर को मारना अपराध है। तो चाहे गाय हो या कोई मुर्गी भी हो, कोई भी हो, किसी को मारना नहीं चाहिए खाने के लिए, क्योंकि भगवान ने खाने के लिए फल, सब्जियां और दाल चावल और ये सब दे रखा है। तो हमें किसी जानवर को मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट ने रूल ही बना देना चाहिए। अब जैसे मथुरा में उन्होंने उसको तीर्थ क्षेत्र बना दिया है 10 किलोमीटर, तो एक्चुअली 10 किलोमीटर से भी फ़ायदा नहीं है। पूरे का पूरा भारत जो है, पूरे के पूरे भारत को ही तीर्थ क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए कि पूरे का पूरा भारत भगवान का है, ईश्वर का है, कृष्ण का है। और इस धरती पे ना कोई जानवर मारा जाएगा, ना कोई अपराध किया जाएगा, और भगवान मालिक है, इस पूरी धरती के मालिक भगवान है। ये संविधान में लिख देना चाहिए और सारे जानवरों को काटना बंद कर देना चाहिए। तो और अगर हरे कोई कृष्ण। हाँ, और अगर कोई विरोध करे, कोई मुस्लिम विरोध करे, तो हम उन पे कार्रवाई भी कर सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं ये शास्त्र के विरुद्ध है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके मुझे ये भी उन्होंने बोला कि उनके वो में लिखा है कि जो चीज हमारे बॉडी को तकलीफ देती है वो हराम है, वो नहीं खाना चाहिए। जैसे वो लोग शराब नहीं पीते हैं, उनके लिए शराब हराम है, और कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी को तकलीफ देती है वो हराम है। पर उनको शायद ये नहीं पता कि ये जो मीट खा रहे हैं ये भी उनके लिए हराम है। उस हिसाब से तो बॉडी को तकलीफ देती है मीट ईटिंग। हाँ, पर उनकी फिलोसफी में गलत बात है कि मेरी बॉडी को तकलीफ हो वो नहीं खाना है, बट मीट खाने के लिए आप जानवर की बॉडी को तकलीफ दे रहे हो ना, तो उसको भी तो तकलीफ हो रही है। तो ये उनकी फिलोसफी गलत है, उनकी फिलोसफी रॉन्ग है। यही पॉइंट महाप्रभु ने बोला था चांदकाजी को, और इस पॉइंट पे वो हार गए थे कि चांदकाजी ने भी बोला था कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि हमारी बॉडी पे जो बुरा असर करता है वो नहीं खाना है, वो हराम है। तो महाप्रभु ने बोला कि तुम गाय को मारते हो और बकरी को मारते हो, उसको भी तकलीफ हो रही है, तो वो भी हराम है और तुम्हारी फिलोसफी गलत है। तो महाप्रभु ने उनको हरा दिया था। तो ठीक है, अभी आज का टाइम यहाँ पूरा हो गया है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इस पर डिस्कशन। और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कल पूछ लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय शिला प्रभुपाद।